नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड सबको बहुत पसंद आई और खास करके अनुज का वो सीन जिसको देख के हम सब खुश हो गए। तो आपके खुशी भरे रिव्यूज आए हैं आज, तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। Hello and good evening, Anju ma'am, and to all the fans and the members. Good evening to you all. Thank you all for your lovely warm messages uh, and for your concern about my health and my voice. Yes, I was a bit unwell yesterday. My asthma is a little bit inflated due to freezing weather conditions over here, and thank you all for the fans for your lovely messages. Abigail here, and yeah, I watched the episode today. I was really I liked the episode. I was very happy, and I was a bit glad. I think the directors are probably overlooking all the comments and everything what goes on social media about why was Anuj quiet about Aradhya constantly being rude and misbehaving. So yeah, the episode I liked. It started with there is a festival and a bonfire going on, and Deepu's mom welcomes the Shah family, and then there's a little bit of a crack talk between. So yeah, this little small argument keeps on going on with Pa and Deepu's mom, and then everybody goes around the bonfire, and there's some ceremony. Everybody makes their wishes, and all of their wishes are like good. Anupama makes her wish, and she wishes even for Anuj and for herself. All those wishes were really very good. Then tension comes in. I actually forgot there is a little cute little scene where Anupama's dad tries to flirt a little bit with Deepu's mom, and how Bha gets jealous. Yeah, so then the whole scene starts when Anuj and Aradhi and Shruti walk in the ceremony, and then Aradhya is very upset with Anuj and asking Anuj why he chose to come here instead of going for a movie. And she says, I don't like these people. Then Shruti says, we came here, let's attend the ceremony. And then Anuj says, yeah. And then Vanraj comes over to Anuj, introduces himself to Shruti, and then he taunts and says, I'm Vanraj, Anuj's ex. And then everybody look at him. He cannot digest without taunting this Vanraj character. He's totally a Hitler. Anyway, and then Anuj is looking for Anupama. He looks over the family, he smiles and he greets them. And Anupama walks away because she's worried about Kinjal. Then the scene goes to where Kinjal is alone at home on her online call with a client. And then she senses that somebody is in her house. She keeps looking around. And then the scene goes back to the bonfire, and where Shruti comes to greet Anupama and ask about Anupama. They have a small talk. Then again Vanraj comes after Aradhya comes and starts insulting Anupama again, saying my dad is getting married. I will pray that they are happy together with Shruti, not all the negative people. And Anupama gets upset. Of course she should get upset. Actually Anupama should slap Aradhya there. But I think it's because of the ceremony she's quiet. Anyway,
And then Vanraj again comes with his, you could not handle your family, and now you're alone. See, everybody have their own family. In a way, sometimes he is right. Anupama now is alone. She had a beautiful family. So yeah, the highlight of this whole scene is when Aradhya starts telling Shruti, come on, let's go from here. I don't want to stay here. And she says, no, we have come, let's complete the ceremony and go. And then she says, no, you've done it right, what you had to come to do. And then Anuj says, no, wait, we'll go later. And then suddenly she starts shouting. Look at the audacity of this 13-year-old girl. She's shouting at her father, if my husband or I was there, I would surely, put her in her place. And then she screams aloud and everybody looks. She starts creating a scene over there, this Aradhya. And then Paki comes and starts shouting too. And there's a little argument going on there. Good Paki, although, but you're no less. So then Anupama tries to cool them down. Vanraj comes in between. And then, a little talk between Anuj and Vanraj. You didn't, this is how you took care of your daughter, this is how you took care of your daughter, that blaming thing goes on. And then Anupama says it's okay, and then Deepu says, tells Anuj to take his daughter and go from here. So Anuj is leaving when Aradhya abruptly pushes Anupama. The way she pushes her, Anupama is almost falling in the fire. Then Anuj leaves her hand immediately to try to save Anupama, but Deepu saves her. And then everybody's looking, and Vanraj comments, oh, what a scene, he says. And then Anuj leaves, and while Anupama gets up, and she says thank you to Deepu, and she says, I'm fine, it's okay. And then the scene goes to where Kinjal is. So finally, the scene we all fans were awaiting and anticipating is that Anuj speak up. And I think the directors took heed to what all the social media people were trolling Aradhya for. And yes, he goes home, he's furious, and he says, why? And Aradhya, look at her audacity. She says, you tell me why. And he says, you are telling me to say why? You tell me why did you do that? Why did you misbehave so badly there? And then she's like, oh, I hate those people, I hate Anupama. And then he says, mind it, I told you many times, she's your mother, do not call her by her name. And then she says, oh, you left my hand for her, and like she left me for. Then he says, let me remind you and listen to me now when I tell you. I'll not tell you again. Your mom, you do not know what she did for you. She left her dream and her job in America when you ran away to come to you, and she's done so much for you. You don't remember all that. All you remember is that incident. I do not know anything about the incident, but I do know that Anupama can never hurt you. And the other thing is, stop playing victim card with me. And he says, I just hate people who play a victim card. So grow up and stop always playing these tantrums with me. And there are many people who have troubles and traumas in their life. You're not the only person. You need to come out of your trauma. Just one incident cannot keep holding you back. Don't you know Shruti has problems, Anupama has problems, I have problems, and don't you know how much I am going through to do for you? Do you even know to what extent I am trying to make you happy? I think you don't know. And why were you behaving? Okay, you don't like your mom, you hate her, I understand. Why were you behaving badly there? Yeah, so then Anuj tells her to explain
why she was being so rude to all the other family over there. They had not done anything to her, and he said that he was very annoyed on how she behaved yesterday in the car, honking. He was so annoyed. I like it. Yes, Anuj, you need to actually now speak up to her, like Anju ma'am you mentioned yesterday in your video. Aridhya does have a mental problem. She is not mentally stable. She needs to see a psychiatrist. Anyway, and then the scene goes to where Kinjal is kidnapped by the goons. They are with a gun. They come drinking alcohol. They threaten her to get Toshu back. Otherwise, they'll kidnap the daughter. And then somehow Anupama comes and sees that Kinjal is tied up. They release her, and she tells Anupama what happened. They all are scared. Dimpy and Kavya and Anupama. Then I think they all make a plan. It's not revealed, but they make a plan, and because Anupama says this is enough, Toshu needs to pay for his crimes, and we would not face it as a mother or a wife or a child. His daughter should not face this, and we will get him back. And then the scene goes to the pre-cap where Anupama is telling Vanraj to call Toshu, otherwise another gun incident would happen. So that's I really liked the episode today, and yeah, Anuj needs to really catch Aradhya's reins now. Thank you, ma'am, for this opportunity, and thank you all. Love you all. Good night. नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज होलिका दहन के पावन दिन पर आप सभी को खुशियाँ मिले और आप सभी के जीवन में बस अच्छाई जीते और हमेशा आप सभी के जीवन में रंगों की बहार रहे, खुशियों की बहार रहे। हम अंजू जी, आपसे जुड़े हंग्री स्पिरिट से जुड़े सभी सदस्य और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए दिल से होलिका के लिए आपकी प्रार्थना करती हूँ। मैंने अंजू जी कल के आपके सारे वीडियो देखे थे कि अनुज फिर हुआ शर्मिंदा, वो वीडियो भी बहुत अच्छा था। कि और दूसरा, पाखी ने पहले ही दिन अमेरिका आते ही अपनी बर्बादी को बुलावा दिया। एक वीडियो था आपका कि अपनी गलती के अलावा सबकी गलतियाँ ये आद्या को याद है। और एक वीडियो था आपका कि वनराज अब खुद तोशु को हाथ पहनाएगा, हाथ कड़ियाँ। मैंने और आज का भी वीडियो देखा आपका कि मान के अनुज के एक डायलॉग ने मान के लिए अपनी वो बढ़ा दी है सबके लिए दिलों में। एक खुशी की बात आ गई है कि अनुज ने इस तरह से कहा। और श्रुति अब ये समझौते वाली शादी या एहसान वाली शादी नहीं करना चाहेगी कि मैं आपके लिए कितनी कुर्बानी दे रहा हूँ। कुर्बानी देने वाली शादी तो शायद श्रुति अब नहीं करना चाहेगी। हो सकता है वो आगे चलकर मान को मिलाने की कोशिश करें। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, सभी स्पाइस एंड चटनी में आए हैं सास और अनुपमा के साथ में, और वनराज बीजी के सामने कुछ बोलने ही वाला था कि बीजी ने कह दिया कि ये तो माँ से भी बड़ा बदतमीज़ है। और बा को तो बस हर जगह मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस तरह का वो लगता है। और बापूजी और बीजी की मीठी नोकझोंक अच्छी लगी मुझे। उधर फिर अनुज आते हैं तो जानबूझ के वनराज अपनी पहचान दिखाता है श्रुति को कि मैं तुम्हारी हस्बैंड की एक्स का एक्स हूँ। ये वनराज शाह को अपनी पहचान बताने की क्या ज़रूरत है अंजू जी, मुझे ये नहीं समझ में आता। और बस आद्या का यहाँ आते ही फिर सबके सामने बदतमीज़ी से ड्रामा शुरू हो गया। और पाखी का तो और बुरा लगा। आद्या को तो चलो बच्ची है और उसको किसी ने कुछ समझाया नहीं, लेकिन पाखी को किसने बोला था कि वो आद्या के पास आके कुछ भी बोले। अच्छा हुआ अनुपमा ने बोल दिया पाखी को कि तुझे भी बचपन में 2-4 थप्पड़ पड़े होते तो आज इतनी बदतमीज़ नहीं होती।
आद्या देख लो, अनुपमा ने पाखी को बोला है, आपको नहीं। और आद्या बार बार वो कर रही थी और अपने पॉप को इस तरह से ऑर्डर दे रही थी। ये आज अनुज की कितनी बड़ी इंसल्ट हुई होगी जब इन लोगों को जाने के लिए ये अ, आद्या की वजह से वो लोग कर रहे थे। और चलो, तो जाने ही वाले थे तो उसी समय अनुपमा को धक्का दिया आद्या ने। अनुपमा आग में गिरने ही वाली थी, उसी समय इसने यशदीप जी ने बचाया अनुपमा को। वनराज का ये बोलना कि क्या सीन है। और जब अनुपमा के पास अनुज देख रहे थे तो आद्या ने भी महसूस कर लिया कि आद्या सॉरी अनुज अनुपमा के सामने ही देख रहे थे। चलिए यहाँ से पॉप, यहाँ मुझे कुछ लोगों को देखकर वो लगता है, मुझे दुख होता है, ऐसा होता है। बोलना ये अच्छा नहीं लगता, ये बच्ची है, पर फिर भी बोलना उसे लग रहा था। और इधर फिर वो अनुपमा वहाँ खड़ी थी पूजा करने के बाद में आद्या उसी के हाथ में से थाली लेके जाती। चलो श्रु, मैं आपके और पॉप के लिए अच्छे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ। और तो थाली कहीं और से ले लेती ना आद्या, अनुपमा के हाथ से ही क्यों लेके गई। उसी समय अनुपमा का दिल थोड़ा सा दुखा। वो कह रही है कि बच्चों को नफरत के साथ में बदतमीजी करने का लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। वनराज को कोई काम धाम लगता नहीं है, बस पीछे अनुपमा के पड़ा रहता है, अनुपमा को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। देखो मेरी फैमिली कितनी खुश है और अब अनुज की भी फैमिली पूरी हो जाएगी। अनुपमा इसको जवाब ही क्यों देती है। अनुपमा का इसको जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमें किसी की इंसल्ट करनी है तो उसे इग्नोर करके निकल जाओ, तो उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। अनुपमा उसे जवाब देकर उसके ईगो को और बढ़ा रही है और उसे और प्रोत्साहन दे रही है कि वो और आपको कुछ कुछ बोलता जाए, आपके कभी चरित्र पे उंगली उठाए, कभी कुछ बोले। शादी नहीं निभा पाई तो तुम कौन सी वनरक्षा अपनी शादी निभा ली। और कौन से परिवार की बात कर रहे हो, उसमें आपके बड़ा बेटा और जिसके घर पे आप रुके हो वो बेटा तो है नहीं। और वो बहू भी नहीं है आपकी। तो ये, और जो जो लोग आपके साथ में रह रहे हैं वो एक कैदी हैं, वो आपके साथ में खुश होने का दिखावा करते हैं। अगर काव्या और काव्या और डिम्पल अनुपमा के चलते इन चार्ल्स को छोड़ के चली गई तो लीलाबा आपके लिए जो कहावत है ना कि बेटियों की माँ रानी होती है, बुढ़ापे में भरती है पानी, तो वो आप पे बहुओं की माँ रानी, बहुओं की सास रानी बुढ़ापे में भरेगी पानी, आप पे ये कहावत अब लागू होगी। क्योंकि बहुत आप लोगों ने बहुत जुल्म कर लिए और किंजल को गुंडों ने किडनैप कर लिया। अनुपमा को अंदर से कुछ एहसास हो रहा है कि किंजल फ़ोन नहीं उठा रही है। बार बार फ़ोन करने पर फिर वो काव्या, डिम्पल और अनुपमा यहाँ आके उसे छुड़ाते हैं। किंजल ने कह दिया कि मम्मी बस अब और नहीं, आज बच्चे होते तो, और बच्चों को ये देखकर कितना वो डर जाते, या किसी बच्चे को वो उठा के ले जाते तो क्या करते हम। और कल वो उसके पैसे नहीं मिले उन गुंडों के तो परी को उठा के ले जाएंगे, ऐसा कहा है। ये किंजल का अब एक माँ के तरीके से डर स्वाभाविक है। और जब आद्या ने अनुपमा को धक्का दिया तब अनुज ने आद्या का हाथ छोड़ दिया और उससे बचाने की कोशिश करने गए। तभी यशदीप जी का बचा लेना अनुपमा को और वनराज का ये बड़बड़ाना कि क्या सीन है। अंशु जी, इसको पीलिया हो गया है, जिसे सब पीला ही दिखता है, इसे सच में आंखों में पीलिया हो गया है, क्योंकि खुद जैसा है उस वो वैसा ही समझता है। वनरक्षा इतना ही ज़्यादा है तो जब पाखी सबके सामने बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी आद्या को, बड़ी होकर भी इतनी भी तो अक्ल नहीं है, तब उसको बोलते मानते हम। बस आपकी चलती है तो आपकी वाइफ के पास, दोनों वाइफ के पास या बहुओं के पास, बाकी आपकी बेटी के पास तो आपकी कुछ चलती नहीं है।
अब आगे आने वाले प्रोमो में पाखी आपकी नाक कटाएगी और अब आप लोगों के सच में अब बुरे दिन होने ही चाहिए। बहुत हो गया आप लोगों के। और घर आके फिर वही आद्या ने तमाशा करना शुरू कर दिया। आपने उनकी अनुपमा की वजह से मेरा हाथ छोड़ दिया। आज अनुज ने कह दिया कि एक पिता जो अपनी बेटी के लिए कर सकता है मैं वो करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। ये शब्द सुनकर श्रुति को एक झटका लगा होगा या श्रुति समझना नहीं चाहती है, पता नहीं क्या श्रुति के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव दिखाए गए। और आपकी माँ ने आपके लिए, आप जब घर छोड़ के चली गई थी बचपन में, आप अमेरिका का अपना सपना छोड़ दिया था। आपको वो याद नहीं है, लेकिन आपके साथ एक गलत हादसा हो गया। उसमें अनुपमा की गलती थी या नहीं थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनुपमा ने जानबूझकर आपके साथ कुछ नहीं किया है। और आप विक्टिम बनना छोड़कर बस एक ही बात को पकड़कर उसको हथियार बनाकर सबको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगी आपसे। अब बहुत हो गया। अनुज साथ साथ में ये भी कह देते ना कि अब ज़्यादा किया तो मैं तुमको फिर से उसी अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँगा। तब पता चलता है इसको कि कौन पैसे का वो कर पावर दिखा रहा है। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा वनराज को कह रही है कि अभी भी आप बुला लीजिए। मैं वीडियो नहीं देना चाहती थी क्योंकि उससे सज़ा उससे ज़्यादा होती है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि वो खुद ही आ जाएगा। अगर गोली चल जाती तो गोली चलने का परिणाम आप जानते हैं। उसी समय वनराज को समर याद आ रहा है। और अनुपमा ने सबके सामने कह दिया कि तोशु की वजह से हम सबके जीवन के रंग तो फीके पड़ गए, लेकिन बच्चों को त्योहार का नहीं फीके पड़ने दूंगी, बच्चों को तो एंजॉय करने ही दूंगी। पर मुझे लगता है अंजू जी अब पाखी उल्टा अनुपमा को बोलेगी कि ये इल्ज़ाम आप पे है तो आप ले लीजिए ना, भाई को किसी भी तरह से बचा लीजिए। माँ आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करती, ये सब शायद होगा। और आज होलिका दहन के समय में सबने अपनी अपनी विश मांगी, लेकिन एक बापूजी ने अनुपमा के लिए मांगी कि मेरी बेटी पर चढ़ा इल्ज़ाम छोड़ दो। और अनुपमा ने अनुज की खुशियाँ मांगी और रेस्टोरेंट के लिए मांगी। सब रेस्टोरेंट में बरकत रहे, सबके लिए अनुपमा ने खुशियाँ मांगी, बाकी सब ने अपने अपने लिए मांगी। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। रानी जी तहे दिल से थैंक यू आपको सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मैं रानी महेंद्र जी आपके इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। होली की सबको शुभकामनाएं। चली पिचकारी उड़ा गुलाल, रंगों की वर्षा गुलाल की फुहार, सूरज की किरणों से खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको और आपके परिवार को होली का त्योहार। मेरी सारी फ्रेंड्स, अंजू जी आपकी पूरी हंग्री स्पिरिट टीम को, सबको, रानी महेंद्र जी आपको सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा और आपके रिव्यू भी देखे अंजू जी, कल का भी देखा। अपनी गलती के सिवा और सब याद है आद्या को, ऐसा क्या पढ़ा दिया मालती देवी ने। आज एक बात श्रुति ने सही कही कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है तो तुम अपनी मम्मी से बात करो और सब क्लियर करो। अनुपमा ने छोटी के सामने भी पाखी को डांटा था, लेकिन वो नहीं दिखा। और हमने देखा है कि जब बुली करने वाला सीन में और दिवाली पे जो हुआ, तब अनुपमा के समझाने समझ जाती थी। बुली करने के टाइम भी वो खुद अनुज से बात की थी कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ गलत किया है। तो ये बात पक्की है कि मालती देवी ने ही इसके मन में जहर घोला है। और अब अनुज के सब्र का बांध टूटेगा और आद्या पर ही फूटेगा। कीड़ो तो मिस्टर कपाड़िया खुद है, जिसकी माँ ये छोटी माया है।
अनुपमा ने छोटी की जान बचाई, समर ने अपनी जान देकर अनुज की जान बचाई और कान्हा जी ने कैसा आशीर्वाद दिया है। बीजी को राज का एपिसोड शुरू हुआ। बीजी को बच्चे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ अनुपमा, वहाँ दीपू जी दोनों बीजी और बा को समझा रहे हैं। बा, आपसे मिलकर कोई भी खुश नहीं होता है। दीपू जी का कहना कि आप सब कल आइएगा। यहाँ भी वनराज को ताना मारना जरूरी था। बीजी ने सही कहा। माँ करेला तो बेटा नीम चढ़ा है। आज ये सीन देखकर अनुज की याद आ गई। जैसे अनुपमा ने काम करने जा रही थी, वैसे ही बीजी ने रोक लिया और कहा कि तुम आज कोई काम नहीं करोगी। यही बात जब अनुज अनुपमा की पहली होली थी, तब अनुज बा को भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया था। जब अनु गुजिया तल रही थी और अनुज ने पूछा था अनु कहाँ है, तब वो बा कहती है कि जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तब तक वो नहीं आएगी। तब अनुज ने कहा था कि मैं तो अनु नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। और वो अंदर गया और सब कुछ बंद कर दिया, गैस गुजिया सब कुछ ढक दिया, गैस भी बंद कर दिया और अनु को डांटा था कि तुम बाहर क्यों नहीं हो, सब लोग बाहर त्योहार मना रहे हो, तुम घर में क्यों हो। तब अनुज उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाता है। तब बात चौंकती है। तब कहता है बा, आपको अपनी सेवा जितनी करवानी है करवा लीजिए, लेकिन मेरी अनु से घर के काम मत करवाइएगा। तब बा कहती है कि घर के काम कौन करेगा, तो ये घर किसका है, ये घर किसका है, तो मेरे बेटे का, तो फिर काम भी वही करेगा। तब काव्या कहती है क्या भी गुजिया तलेगा। सब लोग हंसते हैं। आज बीजी ने भी वही मान दिया अनुपमा को कि तू कुछ भी काम नहीं करेगी, हमने लोगों को बुलाया है काम करने के लिए। वाह बीजी, क्या जवाब दिया। बीजी ने बा को वही बापूजी क्या फेक किया। बीजी डर गई। लो, गुंडे सीधे घर में ही घुस गए। किंजल को एहसास हो रहा है कि कोई तो भी घर में घुसा है। वो घबरा जाती है। बापूजी, आपको बीजी को देखकर आपको आपके क्लासमेट की याद आ गई। अरे वाह, बा को जलन हो रही है। सही कहा बीजी ने कि आप बीवी से डरते हैं। तब बापूजी हाँ कहते। तब बा का चेहरा देखने लायक था। क्लासमेट पर सब लड़के मरते थे, तो उनमें से एक बापूजी भी थे। वाह बीजी, बीजी बहुत क्यूट है। वनराज सही कहा, आज होलिका दहन में क्या क्या जलेगा उसका इशारा बाकी तरफ था। अनुपमा ने सबके लिए मांगा और हर बार की तरह अनुज और छोटी के लिए एक्स्ट्रा मांगा। उनकी खुशी के लिए उनकी खुशी, लेकिन अनुपमा, अनुज की खुशी तुम्हारे साथ है, श्रुति के साथ नहीं है। वाह, माही कितनी प्यारी है, अपने पापा का प्यार मांग रही है। अब आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, आपके नसीब में, उनके नसीब में आप जो है। बापूजी ने अनुपमा के लिए मांगा। बीजी दीपू ने स्पाइस चटनी के बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। बीजी को देखकर बापूजी को अपनी सीरत कौर याद आ गई। आज बीजी और बापूजी का सीन देखकर मज़ा आ गया। पाखी को बिजनेस का बीबी नहीं पता है और अमेरिकन वीज़ा चाहिए, बिजनेस का अमेरिकन वीज़ा चाहिए, इसे फेंकू। बा वनराज ध्यान अनुपमा और दीपू पर है। आद्या मूवी देखने ही जाती, क्यों आई हो यहाँ अपने पापा की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने। लो, वनराज आ गया अनुज के पास। वाह, क्या इंट्रोडक्शन दिया है। अनुज की एक्स का एक्स वनराज शाह। मूछ वाले अंकल की मूछ निकल गई। मैडम को सब कुछ याद है, रिश्ता नहीं रखना चाहती तो क्यों
चिपक रही हो। लो श्रुति फिर से अनु के पास आ गई नाटक करने के लिए। श्रुति फिर से अनु के पास आ गई नाटक करने के लिए। लो ये लड़के फिर आ गई शुरू करते। क्या लगता है इसे श्रु बच्ची है जिसे अनुपमा सिखा देगी? वनराज तुम तो अभी भी अपना रिश्ता अभी तक नहीं संभाल पाए हो। ये घमंड करना बंद करो। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी डर की वजह से तुम्हारे साथ है। अनुपमा अकेली काफ़ी है और अनुज आज भी अनुपमा से प्यार करता है। तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखाई देता। क्या सही कहा है अनुपमा ने। फैसला कान्हा जी करेंगे। अनुपमा को किसके पास भेजना है? अनुपमा को किंजल की फिक्र हो रही है। ये इतनी बदतमीज क्यों है? तो तुम्हें कौन कहता है कि अनुपमा को देखो और बाकी सबको देखो? तो दोनों बिल्लियां झगड़ रही है। तमाशा देखो। पाखी थप्पड़ तुम दोनों को चाहिए। बीजी ने सही कहा, तमाशा कर रहे हो। अनुपमा दोनों को ही थप्पड़ मारो। वनराज तुमने कौन सा पाखी को तमीज सिखाई है? अनुज तुमने भी आद्या को कुछ नहीं सिखाया। लो धक्का लग गया छोटी का अनु को। अनुज चाहकर भी अनुपमा को नहीं बचा सका। बेटियां तो माँ बाप का सपोर्ट सिस्टम होती है, बट इसमें शर्मिंदा बना रही है। माँ पापा को दोनों की दोनों ही बेटियां घटिया है। क्या सीन है? ये डायलॉग वनराज की जगह हमें बोलना चाहिए कि दोनों एक्स पति खड़े हैं और कोई और अनुपमा को बचा रहा है। वनराज हमेशा घटिया ही रहेगा। दीपू ने बिल्कुल सही कहा। आप प्लीज आज भी आद्या ने आद्या की वजह से माफ़ी मांगी। बीजी का कहना अच्छा लगा कि वाहे गुरु इस बच्ची की कितनी परीक्षा लेगा। सही कहा बापूजी कि मेरी बेटी जितनी अच्छी है उतनी ही उसकी किस्मत खराब है। परी अपनी मम्मी को मिस कर रही है। लो गुंडे कह दिया कि कल पैसा नहीं मिला तो परी को उठा के ले जाएंगे। वाह अनुज का पड़ा इस बैग। सही कहा कि आपकी बदतमीजी की वजह से कि आपकी मम्मी यूएस की फ्लाइट से उतरकर वापस आ गई थी। आपके लिए अपने सपने को त्याग किया था। उसने जानबूझकर कभी आपको हर्ट नहीं किया। अपनी माँ का नाम नहीं लेते उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो तुम जिंदा कैसे हो? याद है आपको? यू डू नॉट रिमेंबर? तुम्हें याद है? नहीं याद। सही कहा। हादसे को ढाल बनाकर सबसे बदतमीजी करती रहेगी। अपना मुंह बंद रखो। एक पिता जो कर सकता है वो सब अनुज ने किया है, आगे भी करता रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार विक्टिम कार्ड खेले और उसे अपनी मम्मी की कोई अच्छी बात याद नहीं होगी। इसको कहाँ याद होगा? इसको सिर्फ पार्टी करनी है। बॉयज गर्ल्स को अनुज कुर्बानी इस छोटी के लिए क्यों दे रहा है? और आज अनुज के इस डायलॉग से मान की कहानी में बड़ा ट्विस्ट। अब तो श्रुति को अक्ल आ जानी चाहिए कि अनुज सिर्फ आद्या की वजह से श्रुति से शादी कर रहा है। वो सिर्फ कुर्बानी वाली शादी कभी नहीं टिकती। श्रुति ने भी देखा जब अनुज ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ कि तब अनुज ने श्रुति की तरफ इशारा किया था हाथों से। ये पॉइंट किसी ने नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया है। होलिका दहन में सब कुछ दहन अनुज का सब्र भी। अनुज जानता है कि अनुपमा ने छोटी के लिए बहुत कुछ किया है। छोटी तो रात को अपने कमरे में सो जाती थी, लेकिन अनुपमा रातों को जाग कर पढ़ती थी, बाद में उसे पढ़ाती थी। ये बात सही कही आपने। करियर को छोड़ दिया छोटी के लिए, और ये बात सुनकर श्रुति भी चौंक गई। आज अनुज ने बखूबी बाप का हक और फर्ज निभाया है। आज आद्या की बोलती बंद कर दी। मजा आ गया। आज अनुज रॉक, आद्या शॉक। अनुज को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। आद्या की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। इस छोटी की वजह से ही अनुज ने अनुपमा को छोड़ा था। अनुज अनुपमा दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है। वो बापूजी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब श्रुति क्या करती है वो भी देखेंगे।
आज के एपिसोड का सबसे बड़ा सीन अनुज वाला ही था। अब अनुपमा, काव्या, किंजल और डिम्पी तोशु को पकड़ने का प्लान बना लिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, और होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुज वाला सीन ही आज के पूरे एपिसोड में याद रह गया। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा तो आज बीजी और बा की नोकझोंक बहुत अच्छी लगी। उधर वनराज का अनुपमा को बातें लगा लगा करना, जे वनराज कभी नहीं सुधर सकता। उधर बापूजी का बीजी को बंदूक वाली पिचकारी लेकर डराना, वो सीन सच में अच्छा लगा। और एक दूसरे के साथ बातें करना, जब उन्होंने कहा कि आप जामनगर में रहती हैं, तो जो भी मेरी फ्रेंड थी, जो भी उसने नाम लिया, बहुत मतलब कि अच्छी लगी इन दोनों की। और उधर बात जल भुन कर राख हो रही थी। और आज अनुपमा को देखा तो वो हमेशा किचन में ही हमें नज़र आती है जब भी होली का त्यौहार होता है। पर आज बीजी ने कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम हमारे साथ यहाँ त्यौहार मनाओगी। ये देखकर दिल को सुकून मिला कि चलो कोई तो त्यौहार हुआ। जो कभी भी हमें अनुपमा त्यौहार में नज़र नहीं आती थी, हमेशा किचन में ही नज़र आती थी। आज पहली बार अनु ने अपने लिए भी विश मांगी और सब ने अपने अपने लिए विश मांगी। आज सबसे ज़्यादा सीन मुझे बहुत बुरा आद्या का लगा, जब उसने सबके सामने फिर से बदतमीजी से बात की और श्रुति को कहा अनुपमा के सामने कि आपकी और पॉप्स की शादी के लिए मुझे प्रे करना है और जो कि नेगेटिव लोग हैं हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। आज आद्या का अनुज पर चलाना बहुत बुरा लगा। आज अनुपमा गिरते गिरते बची आग में से, अगर कुछ हो जाता तो। आज मुझे अनुज के लिए बहुत बुरा फील हुआ कि कैसी बच्ची है जो अपने बाप को इतनी तकलीफ़ दे रही है। उधर आद्या फिर से पाखी के साथ बहस रही थी, एक दूसरे के साथ बिल्लियों जैसा लड़ रही थी। दोनों बाप आ जाते हैं आमने सामने, वो उसकी परवरिश पर उंगली उठाता है वो, और अनुज भी बहुत अच्छे से जवाब देता है कि जैसी तुमने अपनी बेटी की परवरिश की थी वैसे ही मैं ही करूँगा। बहुत अच्छा लगा इन दोनों का। और आज घर जाकर फिर से आद्या का गुस्सा अनुपमा के लिए, आपने उस अनुपमा के लिए मेरा हाथ छोड़ दिया। आज बहुत अच्छा लगा अनुज का आद्या को सबक सिखाना कि आज जो भी उसके दिल में था सब उसने कह दिया। उसके दिल की जो बात वो अपने अंदर छुपाता आ रहा था, आज श्रुति के कानों में भी पड़ी, जब उसने आद्या से कहा कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब भी कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब अनुज ने ये बात की तो श्रुति अनुज की तरफ देखती है। अगर ऐसा पहले ही अनुज तुम इस लड़की को समझाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने तो कल ही कहा था कि अनुज ये तुम्हें बार बार एक्सीडेंट वाली बात दोहराती रहती है, जैसे जो भी हुआ है बस इसके साथ ही हुआ है, जैसे तुम किसी कोई ट्रॉमा से गुजरे ही नहीं हो। अब मुझे लगता है कि श्रुति अब धीरे धीरे समझेगी अनुज को, और जो बातें आ रही हैं कि श्रुति की एक्सीडेंट होने वाली है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझेगी कि अनुज मुझसे शादी क्यों करना चाहता है और क्यों कर रहा है, इसलिए फिर से वो मान को मिलाएगी। और अब लगता है कि शायद आद्या को भी कुछ अकल आए, शायद कुछ टाइम लगेगा बट होगा ज़रूर। और उधर किंजल का किडनैप होना और अनुपमा का आकर बचाना, अब मुझे लगता है कि ये अनुपमा, किंजल, काव्य और डिम्पी ये सब मिलकर कोई ज़रूर तोशु के खिलाफ जाल बिछाएंगी, जो कि तोशु पकड़ा जाए। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस आज इतना ही कहना था, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आप सभी को मेरी फ्रेंड्स को, आपको और हंग्री स्पिरिट परिवार को मेरी तरफ से आप होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, आज का शो देखा, शो तो बहुत मज़ेदार था, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और आपके दोनों वीडियो भी सुने मैंने। एक पहला वो कि यानी आज अनुज के डायलॉग ने मान की यानी स्टोरी को चेंज किया, और दूसरा कि आपने अभी होली का दहन में सब कुछ दहन हो गया, जैसे अनुज का सब्र भी दहन हो गया था, बहुत अच्छा था। दोनों वीडियो से मैं एग्री करती हूँ। या पहला वीडियो जैसे था, जैसे आज के शो में हमने देखा, पहले बहुत अच्छा लगा कि बा और बीजी की नोकझोंक को हमेशा की तरह हो रही, जब से आई है तब से बा। और आज बापूजी और बीजी का यानी जो कॉमेडी सीन्स था वो बहुत अच्छा लगा, यानी अच्छा लग रहा था वो थोड़ा सा कि बापूजी ने मजाक किया, और फिर वो यानी एक माहौल क्रिएट कर रहे थे बापूजी। और
जैसे कि वो यानी बा को है ना चिढ़ाया जा रहा था बीजे के द्वारा, वो सीरत कौर की बात करके, तो वो अच्छा लगे कॉमेडी। फिर पूजा वगैरह होना और अनुपमा का सब, अनुपमा के सब छोटे ने माही से लेके सबने विश मांगी अपनी अपनी, और उसके बाद आद्या इन लोग आ जाते हैं। आद्या का देखते से शुरू हो गया ड्रामा, ऐसा है हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये वो समझाया जा रहा है। अनुज ने समझाया, श्रुति ने भी समझाया, पर बदतमीजी तो हद पार कर जाती है। पहले यहाँ पूजा की थाली भी उसी के हाथ से छीन ली कि श्रुति को कहती है कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए हम विश मांगेंगे और जो भी उसकी बातें। अनुपमा कहती बदतमीजी का लाइसेंस मिल जाता है बच्चों को, ये गुस्सा इनका, ये वो सब। तो ठीक है, बट जैसे फिर आज वो जो उसने हरकतें की, जैसे आज पाखी को भी अनुपमा ने डांटा, बा ने भी बाबूजी ने भी कहा कि तू बड़ी है, दोनों की वही क्लास। और वनराज बीच में कूद ही जाता है हमेशा की तरह। वनराज ताने मारने के अलावा कुछ नहीं करता। एक तो आते से शुरू हो गया कि पूजा होने के बाद आए, उसके बाद मैंने कुछ ना किसी रूप में छेड़ते रहना, और उसके बाद जैसे अपनी बच्ची को संभालो, बेटी को संभालो। अनुज ने भी अच्छा जवाब दिया वनराज को कि तुम जैसे तुम संभालते अब तक वैसे क्या। और उसके बाद अम, इसको बाकी का भी जैसे हुआ रहा था, जैसे और क्या हुआ बीच बीच में अनुपमा का यानी डिम्पल के लिए फ़ोन करना, चिंता करना। और बाकी जो आज जो पाखी ने इसने तमाशा किया आद्या ने, सच में वो आद्या का आज इतने बड़े इवेंट में तमाशा करना, एक फेस्टिवल के दिन तमाशा करना। और जबकि अगर नहीं समझता है और अगर अपने बड़े, श्रुति भी समझा रही थी उसको, श्रुति भी रोक रही थी, अपने बड़े और अपने पापा का जो आज नाम है, आज टॉप 10 में उसका बिजनेस है और सब लोग अनुज कपाड़िया के नाम से उसे जानते हैं। ऐसे बाकी तो ये बा फैमिली नहीं थी ना, बाकी के लोग शाह फैमिली नहीं, पर बाकी के लोग भी बहुत से होंगे, इवेंट है, पूरे इंडियन लोग थे। और आज वो आज जो आद्या ने तमाशा किया, खैर उस बहुत ज़्यादा हो गया था वो आज। धक्का देना और फिर उस टाइप से इल्ज़ाम लगाना, हमें थोड़ा सा लगा था कि शायद अभी अनुज को यहाँ समझ में आएगा कि वो अनुपमा का यानी कैसे किसी को पहले बचाना, ये तो ऐसा कुछ होगा, पर नहीं, वो नहीं दिखाया। और यहाँ पे जैसे आज घर पे आके जैसे उसने आज फिर आद्या ने अपनी बदतमीजी की कि आपने मुझे छोड़ दिया, ये तो अनुज ने उसको डांटा बहुत अच्छे से कि तुम इतनी एक तो माँ को अनुपमा कह रही हो और ऊपर से ये है ना, कितनी बेइज्जती, क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारी माँ से तुम्हें गुस्सा है, नफरत है, करो। मैंने तुम जैसा तुम नहीं चाहती अपनी माँ को अपनी लाइफ में लाना, नहीं चाहती, ठीक है, मानता हूँ, पर बाकी के लोगों के साथ बदतमीजी करने का क्या मतलब था? सच में आज सबके सामने अनुज की सर झुका दिया आद्या ने। और आज ना बहुत अच्छे से क्लास लिया, आज पूरा गुब्बारा फूटे जैसा लगा उसे। वो भी कह दिया जो उसे शायद कहना नहीं चाहिए था श्रुति के सामने, है ना, उसके हिसाब से जैसा वो अब तक दिखा रहा था कि नहीं श्रुति ने बहुत किया, श्रुति को ट्रॉमा है अपने पिता का। और आज वो भी बताया कि तुम्हें अकेले को दर्द नहीं है, सब परेशान है, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, तुम्हारी माँ को है, श्रुति को है, मुझे है। और बहुत अच्छा एक शब्द और बहुत अच्छा लगा, विक्टिम कार्ड मत खेलो, बहुत हो गया, सब सुनते आ रहा हूँ वही अब नहीं चलेगा। अब बहुत अच्छे से समझाया, उसको ये बताया कि तुम्हें माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, वो अमेरिका जाना छोड़ दिया, अपना करियर दाव पे लगा दिया, सब कहा। आज श्रुति ने भी वो सब सुना, आज श्रुति ने भी सुना, पर एक और श्रुति ने भी बात सुनी कि जैसा अनुज कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानी कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी श्रुति का हाईलाइट दिखाया, श्रुति को हाईलाइट होते हुए दिखाया, तो श्रुति को भी वहाँ कहीं ना कहीं ये एक लगा। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट दो श्रुति और आद्या में होना चाहिए। अब हो सकता है, जैसे श्रुति के लिए पहले बोलूँगी कि श्रुति ने अब यहाँ से उसको कैसे जाएगी, वो और निगेटिविटी में जाएगी या फिर यहाँ से वो अपना रुख बदलेगी? क्योंकि अगर उससे समझता है कि अनुज मिल नहीं सकता, कुछ भी करे, तो पॉजिटिविटी में वो शादी नहीं करेगी। बहुत देर अरे एक इतना इंस्टेंट में वो नहीं होगा, एक ही हाथ से, और बार बार कहीं ना कहीं उसको ये सामने आते रहेगा। शायद आद्या बदलेगी या फिर अनुज का कहीं ना कहीं बिहेवियर जो यानी जैसा अभी अनुज को वो कितनी कोशिश कर रही है ना अनुज के पास आने की, ये करने की, तो अनुज कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहा, उसको कोई ऐसा ये नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे उसको ये
धीरे धीरे बात समझ भी आ सकती है, या फिर और निगेटिविटी में जाके और पाने वाली जो जिद रहेगी तो ज़्यादा बढ़ते जाएगी। अब ये यहाँ पे श्रुति का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ आद्या का भी है कि यहाँ पे आद्या उसको कैसे लेती है, आद्या किस टाइप से लेती है, उस पर भी डिपेंड करता है। शायद समझते समझते शादी के मंडप तक बात आ जाए, शायद आद्या को समझ में आए, यहाँ पे थोड़ा नहीं। यहाँ मैं एक बोलूँगी कि अनुज का हम ये कह सकते हैं कि अनुज ने पहली बार डांटा हम लोगों के सामने, और उसके कहने अनुसार कि इसके बाद भी बहुत समझाया, तो डांटा नहीं होगा, क्योंकि उसका अब तक क्या था कि उसको समझाना कीटो कीटो करके, क्योंकि वो ट्रोमा में थी, उसको पैनिक अटैक आते थे, उसे समझाया होगा अपनी तरीके से, पर उसको उस तरीके से नहीं समझाया होगा। और एक्चुअली क्या है कि अब तक वो तीनों, उनकी लाइफ क्या थी तीनों, या फिर वहाँ पे अमेरिका में जो फैमिली होगी जिनसे मिलते होंगे, मैं एक ऐसे कोई सोशल गैदरिंग बोलो, या फिर ऐसा कुछ स्कूल में उसके फ्रेंड्स वगैरह, उन लोगों के साथ मिलना, और अनुपमा को देख के फिर और भड़कना, और अनुपमा से जुड़े सारे रिश्तों में को सामने देखना, तो ये अनुज ने ये रूप अभी उसका देखा ही नहीं था, क्योंकि उसने अनुपमा से भी कहा था सीरत और सूरत में अपनी माँ पे गई है, तो अब तक उसने ये देखा ही नहीं, उसको ये इतना चिढ़ा, उसको लगता था सिर्फ माँ से गुस्सा है, और माँ की वजह से मैं उसके मुंह से कभी कभी अनुपमा का नाम निकल जाना, या फिर अनुपमा से कह दिए नाम जैसे छोटी, या फिर ऐसा कुछ निकल जाना, तो यहाँ से वो चिढ़ती थी। तो वहाँ बस उसका सकता था कि वो मुझ पर चिढ़ती है, मुझ पर गुस्सा निकालती है। और जैसे उसने बोला भी था कि ब्रिज का काम किया, हमारे रिश्ते को मजबूत किया, तो वो कहीं ना कहीं अनुज से चिढ़ती होगी कि अरे मम्मी के लिए, या फिर ऐसा तो मुझे लगता ना, क्योंकि वो भले अपने पापा के पास रहती थी। तो यहाँ एक बात और उसने अनुज ने उस दिन अनुपमा से कहा था कि हम दोनों के रिश्ते को उसने मजबूत किया, और उसने प्रसूति ने भी कहा था कि मैंने ब्रिज का काम किया दोनों के बीच में। तो यहाँ वो ऐसा लगता है कि उसको वो नहीं मिला होगा, समझाने की कोशिश की होगी, तो वो डर की वजह से कि बेटी फिर दूर दूर ना हो जाए। तो यहाँ मुझे अनुज का यहाँ ये रूप ऐसा ध्यान में आता है कि अनुज कहीं ना कहीं इस टाइप से मजबूर था उसको ज़्यादा ये करने के लिए। तो पहले कभी समझाया होगा, या फिर उस दिन भी हम लोगों ने देखा कि वो कैसे जिद कर रही थी, जब अनुज ने अनुपमा को मिलने के लिए फ़ोन कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, और वो फ़ोन पटक देती है, फिर बाद में वो घर के बाहर निकल जाती है, तो अनुज उसको डांटता है। तो यह शायद वो ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर इधर किंजल की भी जान को धोखा है। अनुपमा ने ठान लिया कि अब तो उसको कल ये करूंगी ही, और इसको तो अभी वनराज, शायद वनराज को भी अभी दिखा दे तो डर गया है। वनराज भी सुन रहा है अनुपमा की बात, यानी समझ ऐसा लग रहा है कि मुझे सुन रहा है। किंजल ने भी हाथ पैर मैंने झुक कर कहा कि पापा तोशु को बुला लीजिए, पर अब भी वनराज के हाथ से बात निकल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वनराज ये करेगा कि तोशु को कॉल करेगा, तो तोशु कॉल नहीं उठाएगा या नहीं पता नहीं होगा कि वो कहाँ है। तो यहाँ फिर अनुपमा एक केस स्टैंड है उसके पास। मुझे लगता है कि वो खुद अभी जो मदर इंडिया वाली बात करती है ना अनुपमा, तो यहाँ जैसे बोला जाता है ना, तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा अब जाएगी पुलिस के पास, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई पर्याय नहीं रहेगा, कोई उपाय नहीं रहेगा कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे वो जाएगी अभी कि वो तोशु को इस टाइप से कि मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, और अब ये जो भी ऐसा मुझे लगता है कि वो इस टाइप का करेगी, और उसी दिन उसको यानी, और वहाँ की पुलिस इतनी चौकन्ना है कि वो ढूंढेगी, अच्छी तरह से ढूंढ लेगी कहाँ जाएगा भाग के। तो ये हो सकता है, क्योंकि अनुपमा ने कहा ना कि कल तोशु का भी यानी बुराई का रंग उतर जाएगा उसके। तो यहाँ मुझे ये लगता है हाँ, अगेन जाएगी, पाखी बहुत कुछ बोलेगी, बा कुछ बहुत कुछ बोल सकती है, तो ये सब भी ड्रामा होगा साथ में। पर यहाँ अभी देखने जैसा है कि अनुज का भी जो है आज का बिहेवियर तो कैसे लेता है, और ये बात अनुज को अभी एहसास नहीं हुआ, या फिर अभी वो उसको यानी एक तरीके से पहले मैंने ये लगा था कि अनुज वो बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा है कि किसकी गलती है। मैंने नहीं देखा, बताया अनुपमा ने, तो उसने ये भी कहा ना कि साथ में कि अनुज ने कि उन्होंने कभी जानबूझ के तुझे हर्ट नहीं किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जानबूझ के कभी हर्ट नहीं किया। तो यहाँ उसने पहले भी कहा था कि रही होगी कोई मजबूरी, या कोई यानी एक बोलते हैं ना कि एक वक्त बुरा होता है, कहते नहीं क्या, हालात भी वैसे होंगे। तो यहाँ पे एक बार और बोल चुका है वो, शायद इसलिए रिपीट नहीं किया होगा, या फिर एक एक करके कल और वो सोचे, शायद उसको भी दिमाग में आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि अनुज फिर धीरे ये बात समझेगा, सोचेगा कुछ, तो भी ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखते शो किस तरह जाएगा, इंटरेस्टिंग तो है। और
मान का मिलन तो है तय कर, बहुत सारे कहते हैं एग्जाम्पल इस मान के मिलन पे सेट होते हैं, बहुत सारे है ना एग्जाम्पल, जैसे दूसरी शादी का और अब चाइल्ड का। तो यहाँ पे बहुत कुछ, और एक माँ का जो बताया कि माँ अपने बच्चों के लिए वो जो अनुज ने कहा, तो वहाँ भी वो एक बार सुन लेगी या फिर ये कर लेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है मान का मिलन, तो लगता है मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस टाइप से मिलेंगे वो, क्योंकि समझेगी, अनुपमा भी समझेगी कि छोटी को माँ की ज़रूरत है, ऐसा कुछ लगता है मुझे। और दूसरी बात है कि देखते हैं अनुपमा का गेटअप के लिए सब लोग बोलते हैं, तो वो जैसे एक बार देविका जैसे आई थी 5 साल बाद, जो उसको बंदे कमरे से निकालने के लिए आई थी, तब देविका ने कहा था कि कब तक जोगन बन के रहेगी, डिवोर्स ही तो हुआ है तेरा, तेरे घर में एक आईना भी नहीं, तूने कभी अपने आईने भी में शक्ल तक नहीं देखी। तो यहाँ मुझे अनुपमा वही लग रहा है कि अनुज से डिवोर्स के बाद उस टूट गई है, ऐसा मुझे ना, उसको भी उतनी तकलीफ है अनुपमा अनुज से डिवोर्स लेने के बाद, अनुज से लगने के बाद। तो वो जोगन वाली का रूप दिखा रहे हैं अनुपमा को कि एक जोगन है वो, कि अभी उसको इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, बस आगे बढ़ना है, काम करना है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती, पर वो देविका वाली बात आ गई। अब सब लोग गेटअप की बात करते हैं ना, इसलिए ऐसा लगा मुझे। तो देखते हैं। और वैसे भी अनुपमा फिजूल खर्च में विश्वास नहीं करती, जब तक 2 जोड़ कपड़े हैं, जब तक 2 स्वेटर है, अब तो 3 हो गए, 3 स्वेटर है, तब तक वो एक फिजूल खर्च देख करती भी नहीं, जैसे बच्चों को भी बताती थी। यहाँ मुझे लगता है पैसों की कीमत वो जानती है, इसलिए शायद वो इतनी सिंपल। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत बढ़िया लगा, खास करके अनुज का सीन। इधर बीजी बापूजी और अब्बा का सीन बहुत बढ़िया लगा था, नोक झोंक जो भी था इनका। सच में जल कुकड़ी है, बीच में आके खड़ी हो गई। बुढ़ापे में बापूजी थोड़ी छोड़ देंगे बा को, फिर भी बीच में आके जेलेसी फील हो रही थी उनको अभी भी। बापूजी बोलते हैं कि मेरी बेटी को हर खुशियाँ दीजिएगा कान्हा जी। अनुपमा सबके लिए खुशी मांगती है। अनुज मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी खुशियों को रखिएगा, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। अनुपमा की लाइफ में तो आज भी अनुज पहले ही है। उस इमोशन को हमेशा बाहर रखेगी तो दर्द इसी को होगा, अनुपमा को ही होगा। राधिया हसीन बहुत बदतमीज है, पूजे की जगह पे आई, अपनी दुश्मनी को भूल के वहाँ पे प्रसादी लेके चली जाती। बनराज जाता है, बोलता है कि तुम्हें मोच वाले अंकल याद है कि नहीं, लेकिन अब तो मोच नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम हम लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहती। वहाँ पे सूरती अनुपमा से बात कर रही होती है। यादिया मैडम जाती है कि मैरिड लाइफ हमेशा हैप्पी रहे, उसके लिए प्रे करनी है आपके लोग के साथ में, सारे नेगेटिव पीपल हम लोगों से दूर रहे। बदतमीजी में तो लोग एकदम PhD करके रख लिए एकदम से। बनराज बहुत बदतमीज है, जाके फिर से अनुपमा को ऐसी चीज परेशान कर रहा है। इसको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता, दूसरे की लाइफ में घुसने को टिप टॉप करते रहता है हमेशा, कि तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं है, तुम्हारे साथ कोई रहना ही नहीं चाहता है। अनुपमा के पास कान्हा जी है तो देर सवेर सारे रिश्ते उसको मिल ही जाएंगे। प्रेमी तो कान्हा जी हैं, उनका प्यार सच्चा था तभी तो लोग मिले। अभी तो दादी की उम्र में अनुपमा ने शादी किया अनुज से, फिर भी अब बदतमीज है। बनराज हमेशा ताने मारते ही रहता है, अपने उसका बेटा गायब हुआ उसके बारे में उसको फिक्र नहीं है, इतना तेज अनुज के ऊपर चिल्लाती है। यहाँ बाकी बोलती है हम लोग कोई जान नहीं छिड़कते हैं तुम पे। दोनों जैसी किससे लड़ रही थी, ऐसा लगता है मच्छी मार्केट में लड़ रही हैं। अनुपमा दोनों को शांत करती है तो पाखी बोलती है कि आपने इसको बचपन में 2-3 झापड़ मारे होते ना तो सुधर गई होती। तब अनुपमा बोलती तब तो तुझे भी मारना चाहिए था ना, 2-3 झापड़ मारी होती तो तू सुधर गए। तो फिर बापूजी समझाते कि तू बड़ी है उससे, कम से कम संभल तो जा। इधर बनराज बोलता है कि अपनी बेटी को संभालो जरा सा। फिर अनुज का टोंट, जैसे तुमने अपनी बेटी को संभाला है वैसी चीज। आद्या जानबूझ के धक्का मारती है अनुपमा को। इधर अनुज आद्या का हाथ छोड़ देता है, उसको बोलती है पॉप्स ने मेरा हाथ छोड़ दिया। यहाँ पे अनुज सॉरी बोलता है अनुपमा को। यहाँ पे वो गुंडे लोग किंजल को किडनैप कर लिया रहता है। जब पूरी लड़ाई पैसे की तो लोग पैसे दे देना चाहिए ना उसको। हर रोज किंजल एक डर में जी रही है। किंजल ने भी बहुत बर्दाश्त किया है तोशु के वजह से, बहुत बार उसको शर्मिंदगी महसूस हुई है, फिर भी उसके साथ रही हो। पत्नी बहुत बन ली, अब माँ बन के सोचे अपनी बेटी के लिए। किंजल ने बोला भी तब पूरे परिवार पे आ गई है, इस बार माफ नहीं करेगी उसको। आप हमें वहाँ पे क्यों लेके गए। और वैसे ही अनुज बोलता है कि अपनी माँ का नाम लेके नहीं, मैंने कितनी बार कहा है बिहेव योरसेल्फ। कभी भी एक तमीज से बात करती ही नहीं, वो मेरी माँ नहीं है कि आप उनकी वजह से मुझे डांट रहे। तब अनुज बोलता है कि मैं उनकी वजह से नहीं, आपकी गलतियों की वजह से डांट रहा हूँ।
कि आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे उन्होंने मेरे को सालों पहले छोड़ दिया। इसको ट्रोमा ट्रोमा की तरह ट्रोमे का ड्रामा कर रही है। इधर अनुज बोलता है कि उसने क्या किया, क्यों किया, किस लिए नहीं किया। सॉरी, मैं नहीं जानता। अनुज इतना जानता है कि अनुपमा कुछ भी जानबूझ के नहीं कर सकती। अच्छा किया अनुज को यह याद दिलाना चाहिए था आद्या को। ये घर छोड़ के भागी थी तब अनुपमा ही तो थी ना जो जाके उसको मुंबई से लेके आई थी इंडिया में। अपने सपने की कुर्बानी दी थी अनुपमा ने उस वक्त। तुम्हें याद है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? बोलता है कि तुम्हें ये सब थोड़ी याद होगा। तुम्हें ये याद है कि वो ट्रोमा, वो बचपन का हादसा, और एग्री भी कर रहा है कि वो ट्रोमा था। लेकिन अनुज ने तो बहुत अच्छे फादर का किरदार निभाया है यहाँ पे आद्या के लिए, और उस चीज को किया जो एक पिता करता है अपने बच्चे लोग के लिए, तो उससे भी ज्यादा किया है इसने। आपको भी समझना पड़ेगा कि एक हादसे को पकड़ के आप पूरी जिंदगी सबके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। सही बात है, जब देखो तब इसी ट्रोमे का नौटंकी करती रहती है, सबके साथ बदतमीजी करती है। सूती का एक्सप्रेशन बहुत लगता है, घूरे ही जा रही थी अनुज को। मैंने आपको बहुत समझाया है, पर इनफ। सही बात है कि उस फंक्शन में सिर्फ अनुपमा तो नहीं थी, सब लोग थे, बापूजी थे, माँ थी, बुजुर्ग लोग थे। सही बात है, जिसको ये लोग जानते भी नहीं थे वो लोग भी थे। अनुज बोलता है इसको आइडिया तो क्या, रियलाइजेशन भी नहीं होगा क्यों क्या कर रही थी वहाँ पे, कि आप क्या बकवास कर रही थी। आपको याद है तो मत भूलना कि मेरा बचपन का पेन है, बैगेज है, ट्रोमा है और विक्टिम कार्ड। आई हेट विक्टिम कार्ड। मैं थक चुका हूँ इन सारी चीजों से। मुझे लग रहा था कि अनुज का लोग यही सोच रहे थे कि उसके सब्र का बांध ही नहीं टूट रहा है, इतना बदतमीजी करती है वो, कि आद्या के साथ साथ उसने सुरती को भी बता दिया। मैं ये विक्टिम कार्ड लोगों के देख देख के थक गया हूँ, और उसमें सुरती भी आती है। दुनिया में आप अकेले नहीं है जिसको आपको प्रॉब्लम है, सबकी जिंदगियों में प्रॉब्लम होती है। अनुपमा के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, अनुज के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, आद्या के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, सुरती की भी जिंदगी में प्रॉब्लम है। कि आपको दिखता नहीं है कि मैं कितनी क्या क्या कर रहा हूँ आपके लाइफ में, और मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, कितनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। जिंदगी हर इंसान को छोड़ देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चोट खा के सबसे बदतमीजी करें। बदतमीजी का तो एक लेवल ऊपर ही जा रही है। बात बहुत अच्छी लगी मेरे को अनुज का। आपको चोट मिली है तो चोट के साथ जीना सीखिए, कि लाइफ लेसन टेलिंग यू। आद्या के नाम पे और सुरती को भी सबक सिखा दिया उधर। दोनों विक्टिम कार्ड ही यहाँ पे खेल रही हैं, और सुरती भी वही कर रही है, बार बार अनुज का हाथ पकड़ लेती है, गले लग जाती है, और वो इतना अनकंफर्टेबल फील करता है कि उसके साथ रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको अनुपमा से प्रॉब्लम है, नफरत करती है, वो भी ठीक है। आप नहीं चाहते कि अनुपमा हमारी लाइफ में आए तो वो भी ठीक है। सिर्फ अनुपमा की वजह से सबके ऊपर चिल्लाती रहती है हमेशा। बापूजी के साथ बदतमीजी क्यों की? पहले वहाँ पे हॉर्न बजा बजा के वो बदतमीजी कर रही थी, फिर वहाँ पे किया इसने। अनुज पूछता है क्या प्रॉब्लम है, बताइए मुझे, तो आद्या दम मुंडी नीचे कर लेती है। ये पहले फूर फूर उसका आवाज निकल रहा था अनुज के सामने। सुरती एकदम चुपचाप दोनों को देखे जा रही है कि अनुज से बड़ा दर्द तो नहीं है आद्या को। उसने तो अपने माँ बाप को भी खोया, फिर मुक्कू के साथ जो हुआ उसका ब्लेम भी अपने आप के ऊपर लेके चलता था। फिर मुक्कू उससे कब मिलती थी, मरी है कि जिंदा है उसको ये तक पता नहीं होता था। अनुपमा का प्यार तो 26 सालों के बाद मिला था अनुज को। अपने प्यार के दर्द के साथ जीना सीखा था उसने। लड़की तो बस अनुपमा के नफरत में अपने पिता का हर किया गया सब काम में भूल जाती है। उसके लिए कितना एफर्ट्स कर रहा था वो, ये तक उसको याद भी नहीं था। अनुज बर्दाश्त नहीं करेगा बदतमीजी करेगी तो। अनुज और बापूजी का रिलेशन आज भी वैसी ही है। कल के एपिसोड में जब बापूजी को देखता है अनुज कितने अच्छे से हक करता है उनको। बाकी थैंक यू अंजू मैम, सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लवली कमेंट्स के लिए, और होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को, और अंजू जी आपको भी। आज का एपिसोड देखा, सबसे बेस्ट सीन लगा जो अनुज ने आज आद्या की क्लास लगाई, रियलिटी चेक दिया, मज़ा आ गया। एपिसोड की शुरुआत हुई होली का कार्यक्रम बीजी के यहाँ। बीजी ने अच्छा कहा बात है, काश सच बता पाती तो बहुत अच्छा बोला बीजी ने बा के बारे में। वनराज कितना गंदा है, सच में त्योहार में भी गंदा ही बोलता है। बीजी ने सही कहा कि माँ करेला और बेटा नीम चढ़ा। दीपू केयर कर रहा है, वनराज शाह जला मरा जा रहा है। बाबूजी की मस्ती बीजी से अच्छी लगी। किंजल प्रेजेंटेशन में लगी है, पर उसको कुछ आभास हुआ किसी के आने का,
और सही हुआ था। बा हमेशा बीजी के सामने मुंह ही फुलाए रहती है। बीजी और बाबूजी की सीरत वाली मस्ती देखकर बा और जल भुन गई। मजा आया। वनराज का ताना अच्छा लगा बा को। किंजल ने मोबाइल पर देख लिया कोई है पीछे। बीजी गिरने वाली थी और बाबूजी पकड़ने वाले थे। तभी बा ने बाबूजी को पीछे कर दिया, जलन की वजह से। और माही की विश दिल को छू गई। कितनी प्यारी है माही। और डिम्पी, तुमको तो मौके पर मौके मिलते ही रहेंगे, क्यों परेशान हो। अनुपमा, ये सही मांगा, गलत का दाग लगा है, हटवा दो कान्हा जी। ये तभी होगा जब तुम्हारा सुपुत्र पारितोष शाह पकड़ा जाएगा, जिसको तुमने भागने का मौका दिया था। अनुज अनुपमा आमने सामने, पूरा शाह परिवार भी है। आद्या बुरा समूह बना रही है। अगर आद्या पर लगाम लगाई जाए तो सुधर जाए, पर कोई है ही नहीं लगाम लगाने वाला। इसीलिए ज़्यादा बदतमीज होती जा रही है। पाखी आद्या को देखकर समझ गई कि ये छोटी है। वनराज देखो श्रुति को अपना इंट्रो कैसे दे रहा है। अनुज की एक्स का एक्स। मान गए वनराज शाह तुमको। देखा अनुपमा कैसे अनुज को एटीट्यूड दिखाकर चली गई फ़ोन करने। उसके अपने हैं ना उसके पास। और श्रुति क्यों चली आई जोशी बहन के पास। आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अरे क्या लगा रखा है, ठीक होना ही पड़ता है। अरे जाओ अपने अनुज के पास, अनुपमा ने छोड़ तो दिया तुम्हारे लिए। सुनो मैडम जी, वनराज का ताना जिसके बिना तुमको खाना हजम नहीं होता है। जब तक शाह हाउस का ताना ना सुन लो। ये सही जवाब दिया वनराज को। मेरी हिम्मत और कान्हा जी साथ हैं। और तूफान तो तुम खुद बुलाती हो अनुपमा। किंजल को जब कुछ डाउट हो रहा था तो उसने पुलिस को या किसी को कॉल लगा देना चाहिए था। किंजल को गुंडे ने पकड़ लिया। अब आद्या की बदतमीजी बढ़ रही है और आद्या, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। और अब सही है पाखी आद्या आमने सामने। अनुपमा ने तो पाखी का मुंह आज बंद सही कर दिया। वनराज कह रहा है अनुज से कि अपनी बेटी को संभालो। अरे शुभ बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। वाह वनराज शाह। पर अनुज को पड़िया का जवाब मजेदार लगा। दादी अम्मा कैसे अपने बेटे का हाथ पकड़कर चल दी। वाह भाई वाह। पर लो दादी अम्मा, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। इतनी निगरानी करती रही तब भी अब क्या करोगी। जिससे डरती थी वही बात हो गई। दादी अम्मा, वनराज क्या बक रहा है, क्या सीन है। 2 एक्स खड़े हैं और दोस्त दीपू अनुपमा को बचा रहा है। अनुज सॉरी बोल रहा है, पर आद्या की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। आज भी आद्या बदतमीजी करके चली गई, पर अनुज ने कुछ नहीं कहा। वाह अनुज का पाड़िया वाह। पर कब तक, कब इस पागल की अकल ठिकाने लगाओगे। वो सीन देखने को आंखें तरस रही हैं सच में। अब बहुत हो गया। किस्मत नहीं खराब है बाबूजी अनुपमा की। वो कुछ स्टैंड नहीं लेती है, बस लेती है स्टैंड तो गलत जगह। तुम शाह हाउस वालों के साथ अगर लिया होता तो अच्छा रहता। किसी ने किंजल को फ़ोन किया ही नहीं तो बात क्या होगी। खैर डिम्पी ने किया था। लो अनुपमा की रियायत का नतीजा है, गुंडे घर में घुसकर किंजल को पकड़े हैं। तोशु जेल में होता तो क्या ये होता। बिल्कुल नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद बदतमीजी करके आद्या अनुज से प्रश्न कर रही है। सही किया, नाम लेने पर डांटा अनुज ने। ये काम पहले ही करना था अनुज का पाड़िया। बहुत सही कहा अनुज कि अनुपमा ने कभी जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं की। ये कटु सत्य है। बहुत सही बताया, बचपन की बात बताई कि यूएस की फ्लाइट छोड़ी, अपना कैरियर तुम्हारे लिए दांव पर लगाया, याद है। वेल डन अनुज का पाड़िया। ये रियलिटी चेक पहले ही देना था। गुड। आई हेट विक्टिम कार्ड। बहुत अच्छा बोला। मैं थक चुका हूँ लोगों का विक्टिम कार्ड देख देख कर। इशारा समझो श्रुति तुम भी। आज श्रुति अनुज को देखे जा रही है। ये रूप अनुज का। वेल डन अनुज। क्या बात कह दी है। तुमको दिखता नहीं मैं क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। और सुनकर श्रुति दंग रह गई। सही कहा, अगर चोट मिली है तो चोट के साथ जीना सीखिए। स्टॉप प्ले विक्टिम। अब यही टर्निंग पॉइंट होगा शायद श्रुति के माइंड का। यहीं से ऐसा लग रहा है। सही बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ माँ से है, पर और लोगों ने क्या किया है, और लोगों से क्या प्रॉब्लम है। अब बोलती बंद है आद्या की बच्ची की। इसी बात की ज़रूरत थी आद्या को।
आज डोज मिल गई, अच्छा लगा बहुत। बदतमीज लड़की। और तू ठीक छे? चली आई मैडम किंजल के पास। किंजल, वो दिन याद करो जब समर की डेथ हुई थी और शाह परिवार को तुम लोगों की जरूरत थी और तुम तोसू परी को लेकर चली गई थी इंडिया छोड़कर। वो तो अब क्या हो गया? ये पड़ी, ये वही तोसू है। अब समझ नहीं आया था, तब समझ नहीं आया था, तब वहां से भागी थी। अब कहाँ जाओगी भागकर? अब जब अपने ऊपर आ गई तब समझ में आया परिवार क्या होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान पूड़ी पर गुना और लड्डू रख कर वापस लौटाता है। वही तुम्हारे साथ हो रहा है। ये उसी बात का नतीजा है। जब परिवार को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम भाग गई थी। अनुपमा ये काम पहले ही कर दिया होता तो क्या होता, पर नहीं। क्या फर्क पड़ता है ज़्यादा सजा हो या कम सजा हो, अंदर रहे या बाहर रहे। अच्छा है अंदर ही रहे, बाहर आए ही ना। तोशु, क्यों तुमको पता नहीं है? वो एक नंबर का ढीठ और गधेड़ा ही है। औलाद किसकी है? वनराज शाह की। अब इन लोगों ने प्लान बनाया है तोशु को वापस बुलाने का। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello Anjuji, this is Rita and hello to everyone. I could not send yesterday my audio, लेकिन कल के एपिसोड के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। अनुपमा, काव्या और डिम्पल की का डिस्कशन अच्छा था। अनुपमा काफ़ी समझा रही थी कि खुद के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी जियो, खुद को मत भूल जाओ। काफ़ी कुछ उसने सीख दी, लेकिन अनुपमा ये चीज़ आपको अपने ऊपर भी लागू करनी होगी। बापूजी ने बापूजी जानते हैं कि अनुपमा अब रिश्तों में उलझना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसको रिश्तों में उलझा दिया। अपनी परेशानियों का टोकरा अनुपमा के सर पे डाल दिया। अब अनुपमा, तुम्हें ही ये सब कुछ सुलझाना होगा और जब वक्त मिले तो तुम अपने बारे में सोच लेना। वहाँ अनुपमा सबको बताती है कि फैमिली को बताती है कि उस सबको इनवाइट किया है होली फेस्टिवल में। जब वो स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट से वापस आ रही थी तो उसने पाखी और को एक लड़के के साथ देख लिया। वो लड़का शक्ल से ही पता लग रहा था कितना कनिंग और चालू है, जो पाखी को नज़र नहीं आ रहा। वनराज के वही सरकास्टिक ताने और डबल स्टैंडर्ड ताने अनुपमा ने भी काफ़ी अच्छा सुनाया वनराज को। और अनुज और आध्या कार से घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में देख लेते हैं कि बापूजी और काव्या डिम्पी को। वो उतर के सबसे बातें करता है, बापूजी से के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। आध्या इतनी जेलस दिखाया जा रहा था। आध्या इतनी जेलस थी कि शी स्टार्ट्स हॉन्किंग द कार। हे मेकर्स, आपको ये पता होना चाहिए मैं कनाडा में हूँ और यूएस और कनाडा में ट्रैफिक रूल्स सिमिलर हैं, जबकि कनाडा में तो बहुत टफ है ट्रैफिक रूल्स। बट हॉन्किंग कहीं भी अलाउड नहीं है अनलेस एंड अनटिल बहुत ही जेन्युइन रीज़न हो। हॉन्किंग करने से लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और टिकट मिल जाती है। टिकट मीन्स इंडिया में चालान जिसे कहते हैं, वो मिलती है। हेवी फाइन होता है। मेकर्स, यू हैव टू डू योर होमवर्क फर्स्ट बिफोर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ सीन। एनीवेज, मेकर्स तो वैसे भी इलॉजिकल चीज़ें बहुत सारी दिखाते हैं, जबकि जैसे पुलिस दिखा रहे हैं, पुलिस की जो कैप है वो यूके पुलिस का कैप है, नॉट अमेरिकन पुलिस का कैप। इट्स अ बिग मिस्टेक दे आर शोइंग। आध्या की बदतमीज़ी इतनी बढ़ गई है, अब अनुज को सबक सिखाना ही होगा उसको। ही गेव अ वेरी स्टर्न लुक। जिस तरह से उसने आज बिहेव किया, आध्या ने हॉन्क करके, अनुज को वाकई शर्मिंदा
महसूस हुई, वो उसकी इंसल्ट हुई बेसिकली, उसका सर झुक गया, वो इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। आज के एपिसोड में सब होलिका दहन के लिए पहुंचते हैं, सब अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। अनुपमा देखती है, अनुज, श्रुति और आध्या भी आते हैं। आध्या जब सबको देखती है तो उसका तो बस पारा ही चढ़ जाता है और वो बस कहना शुरू कर देती है कि बस यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। उसको समझाते हैं कि भाई प्रसाद मिल जाए फिर चलते हैं। एंड द वे देन शी स्टार्ट्स येलिंग एंड शी सेज कि यहाँ पे मुझे कोई भी पसंद नहीं है, इन लोगों को देखते ही मैं आई लूज कंट्रोल। शी इज़ टू मच। बदतमीजी की तो दुकान बन गई है आध्या। एंड while going, the way she pushes अनुपमा आग में गिरते गिरते बची है। यशदीप जी ने उसको संभाल लिया था। अनुज संभालने जा रहा था और उसने आध्या का हाथ छोड़ा ताकि वो अनुपमा को संभाल सके, उसे बचा सके। आध्या ये देखती है और कहती कि मेरा हाथ छोड़ दिया इनको बचाने के लिए, इनके लिए। अनुज सबसे अपोलोजाइज करता है और दे गो बैक होम। वहाँ अनुज फाइनली ही टेक्स अ क्लास ऑफ आध्या। वो बताता है, एटलीस्ट एक इंसिडेंट तो बताता ही है कि अनुपमा ने उस आध्या के लिए क्या किया। पहले भी उसने अपना यूएस ट्रिप छोड़ दिया आध्या के लिए, फिर भी उसको कोई रियलाइजेशन नहीं होती। आध्या स्टिल एडमेंट एंड वेरी रूडनेस एटीट्यूड था उसका। कल के प्रीकैप और हाँ, किंजल को उसी के घर में बंधक बना लिया जाता है और उसे वार्न किया जाता है अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो परी को उठा लेंगे। अनुपमा, काव्या और डिम्पी घर आते हैं, देखते हैं कि किंजल बंधी हुई है। किंजल बहुत घबरा जाती है, उसे खोलते हैं, बहुत घबरा जाती है और बता देती है मम्मी को कि क्या क्या हुआ। प्रीकैप में दिखाते हैं अनुपमा वनराज को कहती है कि अगर गोली चल जाती, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, क्योंकि गोली चलने के बाद क्या होता है ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वनराज को इस बात का थोड़ा रियलाइजेशन होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बिकॉज किंजल ऑलरेडी कह देती है अगर तोशु नहीं आया होली तक तो वो परी को लेके इंडिया चली जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच आप सबको, और सबको होली की ढेरों मुबारकबाद। खूब सारे व्यंजन बनाइए, खाइए, खिलाइए, रंग से खेलिए, मगर किसी का नुकसान ना हो, कुछ इस तरह से होली मनाइए, सबको खुशी ही हो, कुछ इस तरह से होली मनाइए। बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे आप सबके और थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए। तो चलिए अब नंबर शेयर करती हूँ जाते जाते, जिन्होंने अभी भी नहीं भेजे हैं उनके लिए। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अनुपमा पब्लिक वॉइस में अपने वॉइस ओवर्स या फिर वीडियोस। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.